علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو، سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں محمد غوث، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے، بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے، تو جیے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے، تو جیے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بے قرار ہو کے دامن تھام لوں میں کس کا، بے قرار ہو کے دامن تھام لوں میں کس کا، کیا مثال دوں میں تیری، نام لوں میں کس کا۔ نہیں نہیں ایسا ہنسی کوئی نہیں ہے جس پہ یہ نظر رک جائے، بے مثال جو کہلائے، تو جیے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اوروں کی طرح کچھ میں بھی تحفہ آج لاتا، اوروں کی طرح کچھ میں بھی تحفہ آج لاتا، میں تیری ہنسی محفل میں پھول۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے 64ویں جنم دن کی خوشی پر آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ وحید احمد ان کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی 64ویں پیدائشی سالگرہ کے موقع پر، کیونکہ ہمارے ریاست کے عزت مآب وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی کارناموں پر روشنی ڈالنے کا مجھے موقع کرائم ٹوڈے کی طرف سے دیا گیا۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ کرائم ٹوڈے نے مجھ کو چنا ہے۔ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ اور میرے اور آپ کے چیف منسٹر کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی 64ویں سالگرہ کے موقع پر، کیونکہ ہماری اس ریاست کے وزیر اعلیٰ نے جو نہ صرف اس تلنگانہ کی دھرتی کے لیے، سرزمین تلنگانہ کے لیے 14 سال اپنے آپ کو اسٹرگل میں ڈالا ہے، 14 سال اپنی ہر خوشی کو، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی، نہ صرف قربانی پیسے سے دی، نہ صرف اپنی جدوجہد سے دی، بلکہ تمام اپنی فیملی کو، تمام اپنی ہر چیز سے انہوں نے اس تلنگانہ ریاست کو علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے بہت ہی بڑے پیمانے پر جدوجہد کی، اور وہ بھی بالکل امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ اس ریاست کو حاصل کیا، کیونکہ یہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی صرف علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے لیے، ایک جدوجہد کے لیے اس تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ میں کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی 64ویں سالگرہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو اس 64ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں میں اقلیتوں کا مسیحا کے طور پر، اقلیتوں کے چیمپئن کا اعزاز عطا کرتا ہوں، کیونکہ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب وہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے جس طریقے سے 2014 میں اس ریاست کی عوام نے ان کو پسند کر اقتدار جب ان کے حوالے کیا، انہوں نے اس اقتدار میں مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ساجھیداری دی،
मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर, अपने कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने नायब वज़ीर आला का ओहदा इस रियासत के लिए एक मुसलमान को चुना है। वो नायब वज़ीर आला के ओहदे के साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूँ, उन्होंने रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन, नोटरी और बहुत सारे वजारतें उनको अता की। और वो नायब वज़ीर आला न सिर्फ कोई गांव के अजला के आदमी को नहीं दिया गया, बल्कि इस सरज़मीन दक्कन की, हैदराबाद की मायनाज व मुमताज़ शख्सियत हमारी इस रियासत के नायब वज़ीर आला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब को अता किया, जिनकी कारनामों से, उनके वालिदैन के कारनामों से इस सरज़मीन हैदराबाद पूरी अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इनके वालिद साहब का शुमार उन अदबी घरानों से माना जाता था जिन्होंने न सिर्फ आवाम की खिदमत की बल्कि मस्जिदों की खिदमत की थी। अल्लाह ने ऐसे आदमी को हमारी इस रियासत के नायब वज़ीर आला चुनने के लिए हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया वो काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब का इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे उनके कारनामों पर रोशनी डालने पर एक खुशी का इजहार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस रियासत के नायब वज़ीर आला का दर्जा दिया बल्कि अहम वजारतें दी। वो छोड़कर उन्होंने मुसलमानों को अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट अता किया, क्योंकि आपको बता दूं जिस वक्त ये रियासत एक यूनाइटेड रियासत थी, इसका शुमार आंध्र प्रदेश में किया जाता था, वो एक बड़ी रियासत को सिर्फ 400 करोड़ रुपये उसका फंड था, लेकिन हमारे वज़ीर आला ने इस रियासत को 1000 करोड़ रुपये का सालाना बजट अता किया। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, जबकि ये छोटी रियासत थी, जबकि इस रियासत बिल्कुल 4 करोड़ की आवाम पर मुश्तमिल थी, उसमें से भी मुसलमानों का परसेंट 20% है, लेकिन KCR साहब ने उसको नहीं देखा, बल्कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने के लिए उनको 1000 करोड़ रुपये अता किए। जबकि ये नहीं किए, उन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी का जायज़ा लिया। मुसलमानों की पसमानदगी का जब जायज़ा लेने के बाद इन्होंने महसूस किया कि मुसलमान तालीमी मैदान में बिल्कुल ज़ीरो है। उन्होंने तालीमी मैदान को चुनने के लिए इस मुसलमानों को तालीमी जाल इन पर डालते हुए, उनको तालीम से राग़िब कराते हुए और तालीम हासिल करने के लिए नए नए रास्ते तलाश किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा इस रियासत को मुसलमानों के खुसूसन तालीमी जाल को फैलाकर 71 स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल का अमल में लाया। ये 71 स्कूलों के साथ साथ उन्होंने अभी पिछले 15 दिन पहले और 129 स्कूलों का, यानी अक़लियतों के लिए, सिर्फ अक़लियतों के लिए 129 स्कूलों का इजाफा करते हुए जुमला तादाद 200 कर दी गई। एक रेसिडेंशियल स्कूल में आपको बता दूं 5th क्लास था, 12वीं जमात तालीम का इंतज़ाम है। आपको ये बता दूं फ़ी बच्चे पर 80,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा तालीम कि उन्हें घर की फ़िक्र छोड़कर तालीम की फ़िक्र पर राग़िब किया जा रहा है। इससे मुसलमानों में रोज़गारी के रास्ते भी और ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि परसों ही 7,309 एम्प्लॉइज़ का यानी टीचर्स का नोटिफिकेशन आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ अक़लियतों के लिए 2,808 यानी रोज़गार के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं उनका इस बात पर भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रियासत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कश्मीर में भी एक रियासत में चीफ मिनिस्टर मुसलमान बना है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इस्लामिक कल्चरल सेंटर नहीं बनाया गया आज तक। सिर्फ हिंदुस्तान में एक जगह है, दिल्ली में। अल्लाह के फजल व करम से हमारी इस रियासत के वज़ीर आला ने यहाँ पर इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो 6000 गज़ की अर्ज़ी पर मणिकुंडा जैसे मकबूल तरीन इलाक़े में मुसलमानों को क़ायम करने के लिए आपने वादा किया। ये ना सिर्फ ये किया बल्कि मुसलमानों को तालीमी रुझान और ब्यूरोक्राफ्ट में मुसलमानों को शामिल करते हुए IPS, IAS, IFS की ट्रेनिंग के लिए मुस्लिम बच्चों के लिए आपने तालीम और उनको पूरा तरीक़े से हमारी रियासत के बच्चे IPS, IAS खुसूसन मुसलमान बन के आना बोलकर महीना 1.5 लाख रुपये उन पर ख़र्च किए जा रहे हैं। ये नहीं बल्कि हमारी रियासत के वज़ीर आला ने एक मदरसे का दौरा किया जो सरज़मीन हैदराबाद पर एक हम फ़ख्र के अंदाज से कहते हैं, हम उस सरज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है जहाँ पर जामे निज़ामिया है, बल्कि ये पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ आपने दौरा किया बल्कि 14.6 करोड़ रुपए जारी किए गए।
वहाँ पर ऑडिटोरियम की तामीर के लिए। मैं आपको बता दूँ इस रियासत में और हमने देखा है यहाँ पर एक यतीम खाना जहाँ पर मुस्लिम यतीम बच्चे रहते हैं, जिन्होंने आज तक इस मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बनकर आए उन्होंने मुसलमानों के इस यतीम खाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस रियासत के वज़ीर आला ने वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की शक्ल के लिए 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। ना सिर्फ वो सैंक्शन किया बल्कि उसके बाजू की 4000 गज अर्जी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन यतीम बच्चों की तामीर की और उन्हें एक बहुत बड़े स्कूल में तालीम दी जा रही है। अल्लाह का इतना फजल करम है, हमारी इस रियासत के वज़ीर आला ने इस यतीम खाने के बच्चों के लिए ऐलान ये किया है कि ये बच्चे तालीम कंप्लीट करे बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो लड़कियां हैं यहाँ पर तालीम हासिल करें उन्हें पहले नौकरी दी जाएगी, फिर उनकी शादी के इंतजाम किए जाएंगे। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इस रियासत में जो हिंदुस्तान में मुल्क भर में कहीं ऐसी रियासत नहीं मिलेगी जहां मुस्लिम लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये वो किसी एजेंट के ज़रिए नहीं बल्कि बैंक के ज़रिए आपको दिए जा रहे हैं, चेक के ज़रिए आपके अकाउंट में दाखिल किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हमारी इस रियासत के वज़ीर आला ने सबसे पहले मुसलमानों पर जो तालीमी जाल पहनाया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी जन्मदिन के अवसर पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें इस एजाज़ से अता करता हूँ क्योंकि वो अक़लियतों के लिए एक मसीहा के तौर पर उभर के आए हैं, एक अक़लियतों के चैम्पियन के तौर पर उभर कर आए हैं। इसीलिए अल्लाह का इतना फजल करम है कि इस रियासत में जगह जगह मुसलमानों ने आज तक किसी के पोर्ट्रेट को दूध से नहीं नहलाया। ये पहला मौका है। जगह जगह मुसलमान लोग हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पोर्ट्रेट को दूध से नहला रहे हैं, खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन नहला रही है क्योंकि इस मुस्लिम ख़वातीन उनके पोर्ट्रेट को नहला रही है। उन पोर्ट्रेट को इसलिए नहलाया जाता है जिनके कारनामों को सहराया जाता है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को दिल की गहराइयों से क्राइम टुडे के ज़रिए आपकी 64वीं साल की पैदाइशी सालगिरह के मौके पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस रियासत के वज़ीर आला को सेहत के साथ, सलामती के साथ इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाए रखें और आवाम की और मिल्लत इस्लामिया की, खुसूसन मुसलमानों की खिदमत करने का मौका दे। और हम दुआ ये भी करते हैं अल्लाह उन्हें हमेशा इस रियासत पर कायम दायम रखे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।